بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاوت ہے کہ ایک اچھی بیوی شوہر کے گھر میں اس کی غلام ہوتی ہے، مگر اصل میں اس کے دل کی ملکہ ہوتی ہے۔ تاہم یہ کہاوت ہر کسی پر صادق نہیں آتی، سارا چکر قسمت کا ہوتا ہے۔ میری ماں بھی سلیقہ مند تھی، والد کے دل کی ملکہ، لیکن ملکہ نے ساری زندگی سفید پوشی میں گزار دی۔ والد ایک سرکاری افسر ضرور تھے، تمام عمر ایمانداری کی راہ پر چلتے رشوت کے بادشاہ نہ بن سکے۔ بے شک ہمارے گھر میں دولت کے ڈھیر نہیں تھے، مگر انہوں نے ہم کو علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اور والدہ نے بھی سفید پوشی کے باوجود مطمئن زندگی گزاری۔ ہماری شرافت اور اچھی عادات کی گواہی سارا محلہ دیتا تھا۔ ہم تینوں بہنوں کے لیے اچھے اچھے رشتے آئے، لیکن والد نے اپنے بھتیجے زمان کا ہی انتخاب بہتر جانا۔ میرے تایا جان کی بازار میں بہت سی دکانیں تھیں، ایک میں وہ اپنا کاروبار چلاتے تھے، باقی کرائے پر دے رکھی تھی۔ ان کے گھر میں خوشحالی تھی۔ زمان کو اللہ تعالیٰ نے شکل بھی خوب دے رکھی تھی، لہٰذا ابا جی کو بھی ان سے شادی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ خوشی باجی نے BA کے پیپرز دیے ہی تھے کہ ان کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ یوں دونوں بھائی اپنے بچوں کے رشتے آپس میں کر کے اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ گئے۔ باجی اور زمان بھائی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ دونوں گھرانے بے حد خوش تھے۔ بیٹی کے ہونٹوں پر بھی مسکان ان کی پرسکون زندگی کی گواہی دیتی تھی۔ 1-2 ماہ تک سب ٹھیک رہا۔ ایک دن میں اپنی عادت کے مطابق شرٹ پر پھول کاٹ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون؟ جواب ملا، میں ہوں نعیمہ، دروازہ کھولو۔ خوشی باجی کی آواز تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے خوشی باجی کھڑی تھی۔ وہ اندر آتے ہی مجھ سے لپٹ گئیں، پھر پوچھا کہ کیا امی جان سو رہی ہیں؟ امی نے آواز سنی تو اٹھ بیٹھیں۔ میں سو نہیں رہی، یوں ہی لیٹی تھی۔ آؤ خوشی۔ وہ جا کر امی سے بھی لپٹ گئیں، دیر تک لپٹی رہیں۔ اس وقت میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی، چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ گھر سے رو کر آ رہی ہیں۔ جلدی سے پانی لا کر ان کو دیا اور پوچھا، باجی خیریت تو ہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ بولی، گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا ہے اور تایا جان نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہماری دکانیں اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ باجی نے بتایا۔ بتاتی چلوں کہ تایا جان کی طرح ہماری بھی دکانیں ہیں، ہم نے کرائے پر دی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کا ناجائز مطالبہ تھا، باجی کیسے ان سے متفق ہوتی؟ یہی 2 دکانیں تو میرے بوڑھے والدین کا سہارا ہیں۔ ان کا بھی 2 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرنا تھی۔ حیرت تھی کہ یہ غیر نہیں ہمارے اپنے تھے۔ زمان بھائی کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو وہ میری حمایت میں تھے، اب تایا جان نے جب ان پر دباؤ ڈالا تو انہوں نے بھی کہا کہ تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ تم باپ سے لکھوا لاؤ، تاکہ میں والد سے علیحدہ ہو کر دکان کر لوں۔ والد رات کو آئے تو مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے داماد سے بات کی۔ وہ بولے، آپ کے بھائی کی ڈیمانڈ ہے، خود آ کر ان سے بات کر لیں۔ تایا کا گھر ہمارے مکان سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ابو جان ان کو قائل کرنے گئے کہ یہ دکانیں ہی ہماری روزی کا ذریعہ ہیں۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، دوسری بچیوں کی بھی شادی کرنی ہے، میرے بعد جس کا جو شرعی حق ہے اس کو مل ہی جائے گا۔ بڑی مشکل سے بات سنبھلی اور باجی اپنے گھر واپس گئیں۔ انہی دنوں میرے رشتے کی بات چل نکلی۔ 1-2 رشتے خاندان سے باہر بھی آئے۔ میرے ابو کے سر سے اپنوں میں بیٹی بیانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ انہوں نے دیکھ پرکھ کر میرا رشتہ خاندان سے باہر کر دیا۔ میری رضا بھی پوچھی، میں نے سر جھکا لیا۔ لڑکا فیکٹری مینیجر تھا، خوبصورت اور اچھے گھر کا تھا، لہٰذا سبھی نے اس رشتے کو پسند کیا۔ تاہم میرے والدین کے دل کو دھڑکا لگ چکا تھا۔ منگنی کے 6 ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ خوشی باجی کے گھر میں پھر سے جھگڑا سر اٹھانے لگا۔ بہر طور وہ دکان حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ باجی کے بس میں نہ تھا کہ خود ان کو دکانیں لکھ کر دے دیتی، لہٰذا ان کے گھر میں وہ مقام نہیں مل سکا جس کی وہ حقدار تھیں۔ میرے سسرال والے بظاہر بہت اچھے اور مہذب لوگ دکھائی دیتے تھے، لیکن شادی کے 10 روز بعد جب کہ میرے میاں وسیم مجھے باہر کھانا کھلانے لے گئے
तो घर का सुकून दरहम बरहम हो गया। और ये सुकून दरहम बरहम करने वाली मेरी सास थी। उन्होंने हमारे घर से बाहर जाकर खाना खाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। यूं लगता था कि जैसे उन्हें बड़ा सदमा पहुंचा हो। हम सोच भी ना सकते थे कि इतनी सी हमारी खुशी से इनको इतना गहरा सदमा पहुंचेगा। वो तो रो रो कर कह रही थी, वसीम हाय, मैं क्या जानती थी कि तू इतनी जल्दी बदल जाएगा। हाय, तुमने कैसे तोते की तरह हमसे आंखें फेर लीं। इतने जन मुरीद हो गए कि मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे साथ भी ना ले गए और बीवी को साथ लेकर चले गए। वो इस कदर जज्बाती हो गई कि वसीम परेशान हो गए। यूं लग रहा था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेरी नंदे और देवर भी माँ की तरफदारी में बोलने लगे। घर में मेरे सुकून का आखिरी लम्हा था। उसके बाद से तमाम घर वाले मुझको टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखते, जादूगरनी कहते, हर काम में कीड़े निकालने लगे। हम सहम कर रह गए थे। वो घर वालों के सामने मुझसे हंस कर बात ना करते, बेवजह नाराज़ होते, मुझे वजाहत का मौका ना देते। तंग आकर एक बार मैं भी बोल पड़ी कि आप इन्हीं की सुनते हैं, कभी मेरी भी तो सुन लिया करें। इतना कहना था कि उन्होंने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। मैंने अपनी तौहीन को सह लिया। मैके आई, सब खुशीबाजी की वजह से परेशान थे। मुझसे पूछा कि वसीम कैसे हैं और उनके घर वाले क्या तुम्हारा ख्याल रखते हैं। मैं सबसे यही कहती कि वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपने वालदैन को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लिहाजा अपने मामलात अपने तक ही रखती थी। सो मैं उनकी बदसलूकियों को अपने वालदैन से छुपाती रही। वो खुश थे कि हमारी बेटी सुख से है। सोचा था कि खिदमत, चाहत और खलूस से कभी ना कभी उनका दिल जीत ही लूँगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इन्हीं दिनों मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम मौज़मा रखा गया। अब एक नया महाज खड़ा हो गया कि बेटी क्यों पैदा हो गई। हमने तो बेटे की आरजू की थी। ये एक मुसीबत कम थी कि दूसरी आ गई। सिवाय मेरे शौहर के कोई भी इस नन्ही कली के आने से खुश ना था। जब वसीम बेटी को गोद में उठाते, उनकी वालदा और बहनों के माथे पर बल पड़ जाते। सास कहती, शर्म करो, बेटियों को भी कोई गोद में लेकर फिरता है। उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में लेना छोड़ दिया। मुझे मैके में बच्ची की पैदाइश पर भेज दिया कि मेरी बहन और वालदा मेरा ख्याल कर सकें। मैं कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई। वसीम मुझे सबसे छुपा कर फ्रूट ला कर देते और जब घर वाले सो जाते मुझे सूप बना कर देते ताकि मेरी कमज़ोरी दूर हो। 1.5 साल बाद अल्लाह ने बेटा दे दिया। फ़ारूक की पैदाइश पर भी वसीम के घर वाले खुश न हुए और उनके रवैयों में फ़र्क न आया। मेरे घर वाले यही समझते रहे कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। एक दिन वो भी आया जब हमारी सास को इस बात का किसी तरह इल्म हो गया कि खुशीबाजी के ससुर बाप की जायदाद में उसका हिस्सा मांग रहे हैं। इस बिना पर उनके वहाँ झगड़ा पड़ा हुआ था। इस बात का इल्म होना था कि जब मैंने असल बात बताई, सब सकते में रह गए। मुझसे कहते कि तुमने पहले क्यों ना बताया। बताती तो क्या होता। मेरे और वसीम के ख़ानदान के बड़े मैदान में आए और इंतहाई मुश्किल से सुलह करवाई। जाहिर है कि मैं 2 बच्चों के साथ कैसे तलाक लेकर घर बैठ सकती थी। तो वालिद ने दुकानें मेरे नाम करवा दी और मैं अपने घर जा पाई। मेरी सास ने तलाक का फ़ोन करवा कर अपनी मंशा पूरी कर ली। फिर भी मैं अंगश्त बदंदा हूँ कि उन लोगों के रवैये में फ़र्क नहीं आया। हम भी उन्हीं की ज़बान बोलते। दिल में अहद किया कि सब्र से काम लूँगी, मगर बच्चों को किसके दर पर नहीं लेकर जाऊँगी। खुदा की लाठी बेआवाज़ है कि इन्हीं दिनों मेरी नंद का रिश्ता उसकी पसंद के मुताबिक बड़े चाव से एक अमीर घराने में हुआ। लड़का भी खूबसूरत था, लेकिन बिल आखिर तारीख अपने आप को दोहराती है। शादी के 1 हफ्ते बाद उनके यहाँ मेरी तरह सास के साथ पहला झगड़ा हुआ। उनके भी वही तेवर हैं जो मेरे साथ मेरी सास नंदों के थे और अभी तक हैं। वसीम के घर वाले बेटी के साथ उसके ससुराल वालों को देखकर चकरा रहे हैं। इस बेटी के लिए रात दिन परेशान रहते हैं, लेकिन भूल जाती हैं मेरी सास कि मैं भी तो किसी की लाडली बेटी हूँ। मेरी माँ और बहनें भी मुझसे इतना ही प्यार करती हैं। वो लोग समझते थे कि उनका हर रूप सहना मेरी मजबूरी है। जब उनकी बेटी के साथ वही कुछ हो रहा है तो परेशान है। हालांकि ये तो मकाफात अमल है, जो बोया जाता है वही काटने को मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे हालात ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि मैंने अल्लाह पर भरोसा किया है। मेरी छोटी बहन की शादी की उम्र है।
वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरे वालिदैन अब उसकी शादी का सोच कर घबराते हैं। खुदा न खास्ता कल को उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। वालिद साहब के पास 2 दुकानें अभी भी हैं, हमारी छोटी बहन का हिस्सा है। वो किराए पर लगी हैं और जहेज़ अब्बू जमा करते रहते हैं ताकि उनकी तीसरी बेटी की शादी भी इज्जत से हो जाए और जहेज़ लेकर जा सके। वालिद साहब का पेंशन पर गुजारा है। उनके दोस्त ने, जो उनके अपने ही मोहल्ले में आया है, उन्होंने अब्बू से कहा कि आप मेरी दुकान पर बैठ जाएं, मैं सामान डाल देता हूँ। ये बात भी मेरे ताया को पसंद ना आई। कहने लगे कि तुम क्यों दूसरों की दुकान पर बैठोगे जबकि तुम्हारी अपनी दुकानें हैं। वालिद ने जवाब दिया, अपनी दुकानें किराए पर हैं, बेटी की शादी करना है, उनसे मुआहदा नहीं तोड़ सकता और ना मेरे पास इतना सरमाया है कि अपनी दुकानों में सामान रख सकूं और फिर दुकान चलाऊं। मेरे दोस्त की मेहरबानी है कि मुझे रोज़गार दे रहा है, मैं उनकी दुकान चलाऊंगा, वो आधा मुनाफा मुझे देंगे। इस उम्र में और कौन सा काम कर सकता हूँ। ताया बोले, तुम्हारी एक दुकान जो बड़ी वाली है मैं खाली कर देता हूँ और सामान भी डलवा देता हूँ, तुम अपनी दुकान खुद चलाओ। ताया का मतलब था जब बड़ी दुकान पर उनका सामान जाएगा तो उनको कब्जा करने में आसानी रहेगी। वालिद ने इनकार कर दिया कि मैं दोस्त को ज़बान दे चुका हूँ, अब मना नहीं कर सकता, मेरी दुकानें किराए पर लगी रहने दो। इस पर वो नाराज़ हो गए और उसका सारा खुमियाजा भी बाजी ने भुगता कि अब वो मैके में रहने को नहीं आ सकते। लोग समझते हैं कि जायदाद और बेटा हो तो बुढ़ापे में सहारा होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जायदाद हो तो वो बुजुर्गों के लिए राहत कम और मुसीबत ज़्यादा होती है, क्योंकि औलाद की नज़र उस पर लगी होती है। औलाद नेक हो तो फिर उनके ससुराल वालों की निगाहें उसमें खुबी रहे। मेरा कोई भाई नहीं था, मेरे वालिदैन का सुख से गुजारा हो रहा था। दुकानों के किराए से उन्होंने हमारी शादियाँ की, हमारा जेवर बनवाया, जहेज़ दिया, मगर हमारे शोहरों से ज़्यादा उनके रिश्तेदारों के पेट में मरोड़ें पड़ने लगीं कि बेटियों का हक लेकर खुद आसूदा हाल हो जाएं। किसी ने हमारे वालिदैन के बारे में ना सोचा कि जीते जी वो क्या करेंगे, जबकि उनके बाद जायदाद बिलाखिर हमारे पास ही आनी थी। मैं तो कहती हूँ कि बेटों से ज़्यादा बेटियाँ बूढ़े वालिदैन के लिए पुरखलूस होती हैं। उनको अपने ज़ईफ़ वालिदैन के सुख और आराम का ज़्यादा ख्याल होता है, जायदाद का लालच नहीं होता। ऐसी जायदाद किस काम की जो वालिदैन और औलाद दोनों का सुख छीन ले। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।